ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ 8 ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਸੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪਵੇ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਪਵੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਵਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 18 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਵਾਣੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਲਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਪਵੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਪਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ 8 ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। सो अंकित दुधानी भी साढ़े नाल गलबात दे लिए। अंकित, आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, टिम्बर ट्रेल में जिस तरह का एक हादसा कहेंगे कि वो हुआ है, अभी जो खराबी आई है, जो रोपवे है उसके अंदर जो कार चलती है उसके पे खराबी आई है, कुछ यात्री फंसे हैं, लेकिन अभी तक जो वहां का प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों से मदद नहीं मांगी गई है। लेकिन फिर भी सैन्य जो वेस्टर्न कमांड है, चंडी मंदिर है, उन्होंने अपनी एक टुकड़ी को स्टैंड बाय रखा है, क्योंकि जैसे ही मदद मांगी जाएगी, कोई भी मदद अगर प्रशासनिक अधिकारी समझते हैं कि सेना की मदद की जरूरत है और वो सेना की मदद मांगते हैं तो कुछ ही देर के अंदर तुरंत वो वहां पहुंच जाएगी और वो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये जानकारी है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सैन्य अधिकारियों से मदद नहीं मांगी गई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सेना ने एक टुकड़ी को स्टैंड बाय रखा है, क्योंकि एकदम कोई मदद मांगता है, प्रशासनिक अधिकारी मदद मांगते हैं तो कुछ देर लगती है, बैग वैग तैयार करने पड़ते हैं, सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें तैयार ऑलरेडी कर रखी है। अभी तैयार करके उन्होंने अपनी एक टुकड़ी तैयार कर रखी है। जैसे ही कोई मैसेज आएगा
तो विद इन कुछ मिनटों के अंदर ही वो वहां पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अंकित, क्या कुछ जानकारी अभी तक क्यों नहीं मांगी गई? हालांकि हम भी संवाददाता से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि अपने तौर पर पहले एहतियात के तौर पर जो बंदोबस्त है उनकी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनको उतारा जाए, लेकिन ज्यादातर इनमें महिलाएं हैं, तो किस तरह से अभी कोशिशें चल रही हैं और क्या फौरी तौर पर अगर जरूरत पड़ती है तो फौज आएगी तो उसकी मदद से कह सकते हैं कि सेफ्टी के साथ सबको बचाया जा सकेगा? बिल्कुल, अभी जो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो स्तर के ऊपर सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने भी देखा है और वीडियो के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि जो वहाँ फंसे लोग हैं वो कोई कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कमर में दर्द है, तो वो रस्सी के सहारे नीचे नहीं जा सकते हैं जिस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर प्रशासन को जरूरत पड़ती है और वो सेना से मदद मांगते हैं तो सेना उसके लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे लगातार अंकित की किस तरह से उनको नीचे उतारा जा रहा है। क्या लगता है कि पूरी सहूलत के साथ अगर यही रास्ता अपनाया जाता है तो कितने घंटे में या कितनी देर में सभी को सुरक्षित उतारा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रशासनिक बयान वहां से आ रहे हैं और प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि जल्दी लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो कितना संभव हो पाता है कितना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस रस्सी के सहारे वो नीचे उतारना चाह रहे हैं वो लोग जो लोग फंसे हैं वो मना कर रहे हैं लगातार कि हम नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि किसी को कमर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को दूसरी बीमारियां हैं, तो इसलिए वो लगातार मना कर रहे हैं। तो उसके बावजूद अब सैन्य प्रशासन से क्यों नहीं मदद मांग रहा स्थानीय प्रशासन, वो एक सोचने वाला विषय जरूर है कि अदरवाइज जो कैंट एरिया के आसपास का जो क्षेत्र होता है और उसमें कोई भी घटना होती है तो तुरंत मदद मांगी जाती है और जो जाने हैं उनको तुरंत बचाया जाता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मदद मांगी गई है ये एक बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, यही लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले 1990 में भी अंकित हादसा हुआ था, तब से कुछ टेक्निक जो है उनको अपग्रेड किया गया है, इनकी सहूलत और बढ़ाई गई है, तो उस लिहाज से उनको लगता है कि शायद हम अपने तौर पर इनको बचा सकते हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये पूरा हादसा, इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आई है कि वो अदरवाइज हर रोज कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और वहाँ जो एक होटल बना हुआ है उसमें आनंद लेते हैं। अभी बात करें कि लगभग 3-4 साल पहले हरियाणा सरकार का भी एक पूरा कैंप लगा था जो ऊपर लगा था होटल में, और जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोग वहां से रोपवे के सहारे ही ऊपर गए थे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन कहाँ टेक्निकल दिक्कत आई है वो एक जांच का विषय है कि किस वजह से टेक्निकल दिक्कत आई है और किस कारण से आई है, तो वो सारी चीजें जांच का विषय, वो बाद में जांच होगी। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो उन 11 लोगों को बचाने की है जो उसके अंदर फंसे हुए हैं, और वो लगातार यही कह रहे हैं क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, कहीं ना कहीं वो दम घुटने की बात कह रहे हैं। लेकिन हालांकि खिड़कियां उसके अंदर पे आ रही थी मैं अंकित, अगर बात की जाए अभी बहुत बड़ी जरूरत है कि किसी तरह से उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए लोगों को, क्योंकि आमतौर पर अगर ज्यादातर महिलाएं हैं तो वो जल्दी है वो डर जाएंगी, तो कोई कांटेक्ट में है उनके और किस तरह से है, अगर है तो क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, फोन उनके चल रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि फोन उनके चल रहे हैं, फोन पे वो बात कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा पैनिक की अगर बात कहें तो ज्यादा पैनिक अभी नहीं है, क्योंकि उनकी लगातार नीचे भी बात हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हो रही है, अपने रिश्तेदारों से भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं घर वालों से भी बात हो रही है, इसलिए पैनिक ज्यादा नहीं है। अगर फोन से कनेक्शन टूट जाता है तो ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो बीच राह में फंसे हुए हैं और पहाड़ी से काफी ऊपर है, तो उसके बाद पैनिक हो जाता है। लेकिन फोन पे लगातार बातें हो रही हैं और हम भी जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं कि वो सारी चीजें बात भी कर पा रहे हैं, अपनी समस्या बता पा रहे हैं, अपनी जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है वो बता पा रहे हैं, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आश्वस्त हैं, वो भी उन्होंने भी अभी तक हाथ खड़े नहीं किए हैं, वो भी आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी वो बचा लिया जाएगा, सबको नीचे उतार लिया जाएगा, जो दिक्कत आई है उसको रिजोल्व कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी वजह से, कारण भी ये भी हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने अभी तक सेना की मदद नहीं मांगी है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, कह सकते हैं कि खुद भी वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपसे जुड़ेंगे जरूर और आप खास तौर पर अपडेट
अपडेट के लिए क्योंकि लगातार नजर बनी हुई है। सो सीधे तौर पे इस वेले बहुत अहम है कि इन्हां नूं किसी तरह दे नाल सुरक्षित कढ़िया जावे। फोन लाइन ते कीर्ति कौशल साडे नाल जुड़ चुके ने। कीर्ति, अब क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि करीबन 700 से 800 मीटर की जो हाइट के ऊपर है वो जो लोग हैं फंसे हुए हैं और ये तकनीकी बोलते हैं कह रहे हैं कि फॉल्ट आ गया था, उसकी वजह से ये बीच में ही अटक गई है। हालांकि सुखद बात ये रही कि जो दूसरी ट्रॉली है वो बिल्कुल खाली थी और जो नीचे से ये ऊपर की तरफ जो ट्रॉली जा रही थी वो बीच रास्ते में ही वो जाम हो गई और वो जाम होने की वजह से अब रेस्क्यू इनके पास एक टेक्निक है कि क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना हो गई है तो उससे इन्होंने सीख ली थी और उसमें ये था कि उसके पैरेलल एक दूसरी ही जो वायर है वो डाली गई है और उससे एक ट्रॉली भेजते हैं जो ट्रॉली के साथ में दरवाजे के साथ में जाकर वो खड़ी हो जाती है और वहां से जो लोगों को है उसमें रेस्क्यू कर लिया जाता है। पर लेकिन अभी उससे रेस्क्यू कर उस रस्सी से जो लोगों को है वो नीचे उतारा जा रहा है। तो जब रस्सी से 500-700 मीटर की हाइट से अब नीचे अगर किसी व्यक्ति को लटकाएंगे और जो नौसिखिया है जिसको पता नहीं है कि कैसे जाना है कैसे आना है और क्या सुरक्षा रहेगी तो उनको बेहद डर लग रहा है और यही जो पोजीशन है वो यहाँ पर देखी जा रही है कि उनको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है काफी देरी आ रही है। हालांकि जो होटल का जो लोग हैं अधिकारी हैं वो उनको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको सुरक्षित उतार लिया जाएगा। लेकिन अगर पिछली घटना की बात करें तो पिछली घटना में महिला ने डर के मारे ऊपर से ही छलांग लगा दी थी जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। कि इस तरह की घटना दोबारा न हो इसलिए जो लोग हैं वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस का अमला भी वहां पर पहुंच चुका है और सभी सुरक्षित उतारे जाएं ये प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार फौज की मदद क्यों नहीं ली जा रही, क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्टैंड बाय पे कर दिया गया है लेकिन अभी मदद के लिए बुलाया नहीं गया। क्या कुछ कहेंगे, क्या उनको विश्वास है कि इस तरह की जो उनकी अपनी जो उनकी ओर से बंदोबस्त है उसकी मदद से जो इनको पूरा सेफ्टी उतारा जा सकता है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर तकनीक विकसित की गई है उससे ये बिल्कुल आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फौज को है आमंत्रित नहीं किया है और इन्होंने ये कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है कि वो खुद ही जो उन लोगों को है रेस्क्यू कर लेंगे। और अभी क्योंकि शुरुआती तौर पर जो उसमें लोग फंसे हुए हैं सिर्फ वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके जो जान है वो अलग से अटकी हुई है और क्योंकि महिलाएं भी हैं, महिलाओं को रस्सी से उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जो एक व्यक्ति था वो वहां से उतर गया है और बिल्कुल सुरक्षित है। अब कितनी जल्दी ये दूसरे लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं उनको उतार पाएगा ये एक अपने आप में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला कह सकते हैं कीर्ति अभी। और जिक्र थोड़ा सा उसका भी करेंगे, जो सैलानी लगातार जो है वो हिमाचल में जाते हैं ज्यादातर और कुल मिलाकर अगर इस घटना की बात करें तो इसके बाद थोड़ा डर का माहौल कह सकते हैं क्योंकि और भी सैलानी वहां पर होंगे और बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की इस समय पहुंच रही है हिमाचल में। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत जो बड़ी बात यही है कि ये जैसे ही बात पता चली है तो जितने भी इनके परिजन है वो भी काफी सख्ते में है और उन्होंने ये प्रशासन से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द जो लोगों को है वो यहाँ पर भेजें और जल्दी से जल्दी इनका रेस्क्यू करें क्योंकि सभी लोग बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। जो अंदर से इन्होंने वीडियोस भेजी और वीडियोस भेजने का एक ही इनका मकसद ये था कि सभी लोग सुरक्षित रहें और ये भी बताएं कि अपने परिजनों को कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित हैं ये कुछ कर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इस ट्रॉली से है वो निकाला जाए। हालांकि ये घूमने गए थे लेकिन घूमते घूमते जो इनकी जान है आफत में पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी अच्छा कीर्ति, पता चला है कि लोग कहाँ से हैं, कौन से राज्य से? जी ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि इनसे बात नहीं हो पाई है और ना ही होटल प्रशासन को पता है कि कौन से लोग हैं ये, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे तो उनमें से कौन से लोग ये नीचे आ रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि अभी सबसे उनकी प्रायोरिटी बचाना है और उसमें वो लगे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो सीधे तौर पर तस्वीरें विखा रहे रोपवे दे विच किस तरह दे नाल 8 जिंदगियां फसियां ने। जानकारी आ रही है कि एक जने नूं सुरक्षित कढ लिया गया तो बाकियां नूं कोशिश की जा रही कि रस्सी दे सहारे ही यानी कि जिहड़ी अपनी तकनीक अपग्रेड की गई है उससे बंदोबस्त दे नाल ही जिहड़ा इन्हां नूं कढिया जावे। पर दूसरे तौर पर भी जानकारी है कि अजे फौज नूं सद्दिया नहीं गया, हालांकि सद्दिया जा सकता है। उन्हां दे वल्लों अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि किसी तरह दे नाल जदों भी बुलाया जाता तो फौरी तौर पर पहुंचा जाए क्योंकि प्रायोरिटी है इस वेले पहल है कि किसी तरह दे नाल इन्हां सैलानियां नूं जो फसे हुए ने इत्थों कढिया जावे।